हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला, जहां पे हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन फॉर ऑल आवर स्वीट डीजे स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसी चल रही है तैयारी? क्योंकि यार अब तो एग्जाम बहुत पास आ चुका है और होपिंग की तैयारी एकदम धुआंधार चल रही होगी एंड यू ऑल आर जस्ट pushing yourself into it so that you just crack the preliminary and the further examinations. Talking about the subject today, we are going to cover civil procedure codes. More questions we are going to practice. Detail में हम देखने वाले हैं कि क्या concept है civil procedure code का. This video has to be watched by every student going to appear in any judicial service examination, because in a very short span of time we are going to cover many topics बहुत ज़्यादा डिटेल में, राइट? तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप टॉपिक करो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाता है। और यही एजेंडा है हमारा लॉ वाला पे इस क्विक रिवीजन का। इसके बाद हम और स्पेसिफिक स्टेट टारगेटेड सेशंस लेके आने वाले हैं, सो यू हैव टू स्टे टिल द एंड। एंड इन टुडेज पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कवर सिविल प्रोसीजर कोड, नॉट इन अ होल एस्पेक्ट, यानी कि पूरा हम नहीं करने वाले हैं, बट all those important topics which are being touched by the examiner, that we are going to cover in today's session. So without any further ado, let us just start off with today's session. I hope the audio video is almost clear. So जैसा कि आप देख सकते हो, लेक्चर नंबर 4 है, जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने उस एस्पेक्ट में आपको कवर कराया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज़्यादा टच्ड है एग्जामिनर के द्वारा। उसी प्रकार से हमारा एजेंडा रहा सीपीसी का। So, but in today's session, I have certain additional things so that your concept from the very beginning is clear regarding the topic also. यानी कि the subject also, the concept has to be clear. So, इसी point of view से we are going to cover the practice questions regarding the DGS exam, जो भी अभी तक की DGS exam में पूछा गया। तो लगभग 45-50 questions हम लोग करेंगे आज के सेशन में। आपको मेरे साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। यू हैव टू, आई विल वेट आफ्टर एवरी आंसर, आई विल वेट फॉर 3 to 4 seconds wherein you can pause me, you can stop me and try to answer the question. रिविजन भी होगा and you will just train your brain according to the question, right? All right. So firstly, many students struggle in civil procedure code. Many students are concerned regarding the topic. They are unable to learn. It is very lengthy, and what has to be the approach while studying CPC. So the approach has to be very clear, very concise. CPC has been divided into two parts, that is sections and orders, wherein sections and orders both are very important for you, but not all. Only there are specific sections, specific orders which are to be learnt by you. It has to be learned by heart. And if compared CRPC from CPC, CRPC is a bit more interesting, wherein you will be learning about FIR, you will be learning about the procedure, investigation, etc. But in CPC, but the irony is that you are preparing and you are going to sit in the examination wherein you are going to apply these principles which you are reading in civil procedure code. So this is the irony, but some students are there who find CPC very interesting also. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस और ऑर्डर्स। ऑर्डर्स जो दिए गए हैं वो सेक्शंस को सप्लीमेंट करने के लिए दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप इंटरलिंक करके पढ़ लेते हो विद दी सेक्शंस, जैसे कि इंटरप्लीडर सूट, रेफरेंस रिव्यू, ये सब आपको ऑर्डर्स के साथ लिंक करके पढ़ना है। अपील के प्रावधान ऑर्डर्स के साथ लिंक करके पढ़ना है, और वो सारे सेक्शंस जो ऑर्डर से लिंक हो पा रहे हैं वही अपने में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सीपीसी के जो शुरुआती सेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक सिविल वाद, what is the procedure which has been adopted by the courts, by the civil courts, what has to be the procedure, that is students very important, right? So usually students struggle because they do not know the procedure,
They do not know where the presentation of the plaint has to come, where the appearance of the parties has to come, and where the framing of issues has to come. So the procedure has to be very, very important regarding civil suit, and that we are going to cover firstly in today's session. And I hope it is beneficial and helpful for all of you. So firstly, सबसे पहले हम बात करेंगे stages in civil suit की. आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी सूट, कोई भी वाद आप दो पार्ट्स में, मतलब दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो. एक सूट होता है जो क्रिमिनल होता है, राइट, उसका नेचर क्रिमिनल नेचर का होता है, और दूसरा नेचर क्या हो सकता है, वो सिविल नेचर का सूट हो सकता है. हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो क्रिमिनल नेचर के सूट्स होते हैं उसके अंदर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप. एक होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट, एक होता है फ्रेंड्स उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट, और दूसरा होता है उसका सब्सटैंटिव एस्पेक्ट. अगर हम लोग प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करें तो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करती है हमारी प्यारी सीआरपीसी, और अगर इसके सब्सटैंटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इसको गवर्न करता है आईपीसी. वहीं पे अगर हम लोग सिविल लॉज की बात करें, तो सिविल लॉज को आप डिवाइड कर सकते हो इन पर्सनल लॉज, इन द प्रोसीजरल लॉज. अगर आप प्रोसीजरल लॉज की बात करें जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी सीआरपीसी, और देयर आर अदर लॉज आल्सो विच आर ऑफ सिविल नेचर. इनफैक्ट सीआरपीसी का एक प्रोविजन जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो भी सिविल नेचर का है. अब सवाल ये उठता है कि मैम ये सिविल नेचर के सूट्स होते क्या हैं सिविल नेचर के सूट्स. आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सीपीसी और सीआरपीसी या फॉर दैट मैटर आईपीसी में क्या डिफरेंस होता है. अगर आप मर्डर करते हो, अगर आप डकैती करते हो, अगर आप रॉबरी करते हो, अगर आप थेफ्ट करते हो, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको पनिश किया जाएगा, राइट. आईपीसी के अंदर आपको पनिश किया जाएगा और आप गवर्न होगे, जो आईपीसी के अंदर, जो कोर्ट के अंदर फॉलो किया जाएगा वो सीआरपीसी किया जाएगा. वहीं पे अगर मैं आपसे कहूं पर्सनल लॉज तो बिल्कुल अलग हो गए, फैमिली लॉज हो गए आपके, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एक्सेट्रा, तो पर्सनल लॉ सिविल नेचर के होते हैं, वो अलग बात हो गई. लेकिन अगर हम सीपीसी की फॉर दैट मैटर बात करें तो सीपीसी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, देयर आर वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ प्रोविजंस व्हिच गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ पनिशमेंट. बोला जाएगा कि इसके वजह से आप जेल जा सकते हो, फाइन देना पड़ेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, राइट. लेकिन सीपीसी मेजरली किसके बारे में बात करती है, अगर राम और श्याम को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, अगर राम और श्याम को पार्टीशन, दो भाई हैं, पार्टीशन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, अगर राम और श्याम मॉर्गेज का मामला है, अगर श्याम और राम दोनों भाई हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी गई है, कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम करी गई है, ये सब कौन से वाद है, किस प्रकार के सूट है, ये सब सिविल नेचर के सूट है. 3 बार सिविल बोल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है. फैमिली लॉज जो आपके पर्सनल लॉज है वो डिफरेंट हो गए, वो मैरिज से रिलेटेड हो गए, सक्सेशन से रिलेटेड हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, दोज आर डिफरेंट. बट हियर वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ पार्टीशन से रिलेटेड, कई बार ऐसे मामले होते हैं. और मोरओवर अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जहां पे हमें ये क्लियर नहीं है कि सूट कहां पे इंस्टीट्यूट होगा रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन, सिविल मामलों के अंदर अपील का क्या पावर है, ये फर्स्ट अपील, सेकंड अपील फ्रॉम ऑर्डर, सूट अगर हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाना है, सूट अगर हमें किसी फर्म के अगेंस्ट लाना है, एक माइनर सूट लेके कैसे आएगा, और अगर किसी को एक माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, कहां दिया गया है, सीपीसी के अंदर दिया गया. सो दीज एस्पेक्ट्स हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड. अब हम हॉप ऑन करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेज. एक सिविल सूट के अंदर पहली वो कौन सी स्टेज होती है, तो पहली जो स्टेज है आपके सामने वो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. जब ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रही है फ्रेंड्स, अगर ए और बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रही है तो सबसे पहले वो डिस्प्यूट कोर्ट के सामने, जैसे कि कंप्लेंट जब फाइल होती है, जब एफआईआर लॉन्च होती है तो क्रिमिनल मशीनरी इन फोर्स आ जाती है, मोशन में आ जाती है. उसी प्रकार से सवाल ये उठता है कि एक सिविल वाद, अगर हम एक सिविल सूट की बात करें तो ये शुरुआत कहां से होती है, वेयर डज इट बिगिंस फ्रॉम, तो यहां पे इट बिगिंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. और ये सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है फ्रेंड्स, इट बिगिंस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट.
Now, who presents the plaint? This has to be clear in your mind. Plaintiff against the defendant. Clear? तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है जिससे एक वाद की शुरुआत होती है, इंस्टीट्यूट हो जाता है कोर्ट के अंदर। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड आप देख लेंगे सेक्शन 26 सीधा सीधा सेक्शन है, और आपके ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 भी इसी से रिलेटेड है। अब यहां पे मैं आपके बारे मतलब आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग प्लेंट। आपको क्लियर होना चाहिए प्लेंट के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, प्लेंट के अंदर क्लियरली होता है कि भाई किस कोर्ट में मामला जा रहा है, कोर्ट का क्या नाम है, पार्टीज का क्या नाम है, उनका एड्रेस क्या है, ये कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है किस कारणवश हुआ है, क्यों हुआ, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, इस प्लेंटिफ को कोर्ट के अंदर प्लेंट दाखिल करने का रीजन क्या है, ये होता है कॉज ऑफ एक्शन। क्या कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो टेरिटोरियल हो, चाहे वो पिक्यूनरी हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, क्या कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। उसके साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि प्लेंटिफ क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है, व्हाट इज ही आस्किंग फॉर, ये देखा जाएगा फ्रेंड्स। और लास्टली ये देखा जाएगा क्या कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का मामला है जहां पे प्लेंटिफ कुछ कह रहा है, डिफेंडेंट कुछ कह रहा है, डिफेंडेंट कह रहा है तुमने खुद ही, वो कह रहा है 1000 रुपए, प्लेंटिफ कह रहा है 1000 रुपए तुम्हें मुझे देने, डिफेंडेंट कह रहा है तुमने खुद ही मुझसे 2000 रुपए लिए, तुम्हें खुद मुझे 1000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये प्लेंट आपने प्रेजेंट किया और प्लेंट के अंदर ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है मैम, प्लेंट प्रेजेंट हो गया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद प्लेंट का कंसिडरेशन होता है, कोर्ट के द्वारा प्लेंट का कंसिडरेशन होता है। कोर्ट अपने कंसिडरेशन में क्या क्या देखती है, कोर्ट ये देखती है क्या कोर्ट फीस दी गई है, कोर्ट देखेगा क्या कोर्ट फीस दी गई है। उसके बाद इस प्लेंट को फाइलिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। जब फाइलिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, इसके अंदर ये देखा जाता है क्या टाइम बार्ड तो नहीं है प्लेंट, क्या लिमिटेशन एक्ट कि जितने प्रोविजंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं हिट हो रहा हो। उसके बाद क्या जुरिस्डिक्शन है, नहीं, कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, क्या रेस जुडिकाटा के चलते ये सूट ये बाढ़ तो नहीं है। अब इस प्लेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ठीक है, वरना प्लेंट को फ्रेंड्स एडमिट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से कोर्ट कंसिडर करती है प्लेंट को। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लेंट का कंसिडरेशन बहुत कम टाइम में हो जाता है। बड़ी बात यह है कि प्लेंट के बाद फौरन ही मेन स्टेप क्या होता है, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज सम्मन, बुलावा, आइए 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 कोर्ट में हाजिरी दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों आपके अगेंस्ट हम सम्मन ना भेजें, क्यों आपको WS नहीं फाइल करना है, आपको बताना पड़ेगा। तो इशुएंस ऑफ सम्मन, ऑर्डर 5 सेक्शन 27 में भी आपको इससे रिलेटेड प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। क्यों इशू किया जाता है फ्रेंड्स, क्यों इशू किया जाता है, इसको इशू इसीलिए किया जाता है ताकि डिफेंडेंट साहब आए, नोटिस उनको मिल जाए कि भाई उनके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, अपीयर करें और बताएं क्या बात है भाई, क्या मामला चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एक मामला होता है कि सम्मन जब ड्यूली सर्व्ड होता है, यानी कि अगर मैं डिफेंडेंट हूं, कोर्ट के द्वारा मुझे आराम से अच्छे तरीके से स्मूथली सम्मन डिलीवर हो गया, फिर कोर्ट ये एग्जामिन करेगा कि मैं पेश हुई टाइम पे या नहीं हुई। दूसरा मामला ये होता है जब सम्मन ड्यूली सर्व्ड नहीं होते हैं, जब सम्मन्स ड्यूली सर्व नहीं होते हैं। रीजन हो सकता है, मान के चलिए प्लेंटिफ का खुद का डिफॉल्ट है, उसने कोर्ट फीस नहीं जमा करी, या फिर मान के चलिए किसी कारणवश सम्मन ड्यूली सर्व नहीं है। तो क्या है, तो ड्यूटी होती है यहाँ पे ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर आप देख सकते हैं, ड्यूटी ये होती है प्लेंटिफ की, ड्यूटी प्लेंटिफ की ये होती है कि वो सेकेंड सम्मन भेजेगा, सेकेंड सम्मन मुझे भेजेगा। ठीक है, तो ये मामला हो जाता है इशुएंस ऑफ सम्मन का। अब सवाल ये उठता है कि जब सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुए तो वो सेकंड सम्मन भेजेगा। अब जब सम्मन ड्यूली सर्व हो गए तब क्या, तो जब सम्मन ड्यूली सर्व्ड हो गए फ्रेंड्स, तो देखा जाएगा क्या डिफेंडेंट अपीयर हुआ या डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ। सो व्हेन द summons are duly served, it will be checked whether the defendant appears on the date of hearing or on the date when he is called upon, or he does not appear. Clear?
So when he does not appear, when for that matter, when the defendant does not appear even after the summons are duly served, then what happens? Then it happens is that the court proceeds ex parte without the presence of defendant. Proceed कर जाता है. इनको ex parte का मतलब क्या होता है? Ex parte का मतलब not necessarily against the defendant. It is not always against the defendant. It means without hearing the defendant. That is ex parte. So it proceeds ex parte. Order 9 Rule 6 के अंदर, सब रूल 1A के अंदर, read with. और ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट के बाद इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स. डिफेंडेंट के पास ऑप्शन होता है. वो क्या कर सकता है? वो एक सेट असाइड ये एक्स पार्टे प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रूल 13 के अंदर. बात क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद कुछ भी नहीं. डिफेंडेंट अपना पक्ष रखेगा. जब प्लेंटिफ ने अपना पक्ष रख दिया, अपनी बात रख दी, डिफेंडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा. डिफेंडेंट आके WS फाइल करेगा. व्हाट इज WS? व्हाट इज प्लेंट टू अ प्लेंटिफ? इट इज द WS टू द डिफेंडेंट. जो बात प्लेंटिफ ने प्लेंट में रखी अपने केस को मजबूत करने के लिए, डिफेंडेंट अपने WS में लिखता है. डिफेंडेंट अपने WS में लिख के उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है, डिस्प्यूट करता है जो प्लेंटिफ ने कहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए WS, पता होना चाहिए आपको. ऑर्डर 8 के अंदर दिया गया, इट इज द रिप्लाई बाय द डिफेंडेंट. 30 दिन के अंदर अंदर आपको सम्मन्स जब आपको प्रोड्यूस करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको रिटर्न करना होता है. ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, माइंड यू. All these are prelims question. So you must know that for the defendants, the time of summons can be extended, but only till 90 days. And always the WS has to be denied very specifically. It has to be very specific. It cannot be evasive. And lastly, if he wants to set off or raise any counter claim, he can put it in his WS. That has to be clear. Moving forward. WS हो गया. अब क्या बच रहा है? अब हो रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे. आप अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करिए, आप अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करिए. उसके बाद क्या होगा? पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा. तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 के अंदर, और यहाँ पे आइदर पार्टीज कर सकती हैं, अपने ओरिजिनल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं. और इश्यूज को, जो इश्यूज हैं दोनों पार्टीज के, उन इश्यूज के सेटलमेंट से पहले ये प्रोडक्शन कर लिया जाता है. एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसको फर्स्ट हियरिंग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स. और ये ऑर्डर 10 के अंदर दिया गया है. इसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के अंदर दोनों पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है. फर्स्ट ऑप्शन ओपन होता है उनके पास कि जो भी आइदर पार्टी जो भी अलेज कर रही है, क्या आप उसको एडमिट कर रहे हो या आप उसको डिनाई कर रहे हो. ये आपको ऑर्डर 10 के अंदर मिल जाएगा एग्जामिनेशन जब हो रही है पार्टीज का. और इसी के चलते आप देखोगे जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हमें दिया गया है सेक्शन 89 के अंदर, वो भी यहाँ पे टकराता है. राइट. ऑर्डर 10 का रूल 1A भी टकराता है. तो ये सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज. आगे देखिए अब क्या. अब भाई बच रहा है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन. ऑर्डर 11 के अंदर दिया गया. यहां पे क्या होता है? यहां पे इंटेरोगेटरीज इशू करी जाती है, इंटेरोगेटरीज डिलीवर करी जाती हैं. क्या काम होता है इनका? काम होता है पार्टीज को एग्जामिन करने का. इंटेरोगेटरीज का काम होता है पार्टीज, मैं चाहूं तो मैं अपने अगेंस्ट पार्टी के लिए, ऑपोजिट पार्टी के लिए इंटेरोगेटरीज डिलीवर कर सकता. जाके आप एग्जामिन करिए, इनके डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाइए, उनको एग्जामिन करिए. ये करा जा सकता है. राइट. यू नीड टू नो दैट ऑल्सो. डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के अंदर फिर उसके बाद देखिए एडमिशन होता है. एडमिशन ऑर्डर 12 के अंदर दिया गया है. यहां पे क्या होता है? आइदर पार्टी एडमिट कर सकती हैं, या तो प्लीडिंग को एडमिट कर लीजिए जो भी प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ ने कहा है और डिफेंडेंट ने WS के अंदर कहा है, एडमिट कर लीजिए. एडमिशन से मामला बहुत ईजी हो जाता है कोर्ट का. एडमिट ही कर लिया तो अब क्या बचा मामला, है ना. तो अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है वो डिसाइड कर लेती है किसको रिलीफ देनी है. उसके बाद अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस स्टेज. ऑर्डर 14 के अंदर इश्यूज को फ्रेम करना. अब मैम ये इश्यूज क्या होते हैं? इश्यूज ये होते हैं, मैं हूं, मेरा भाई है, ठीक है, मैं हूं, मेरा भाई है, मैं कहती हूं कि ये पानी की बोतल मैंने भरी हुई है और जो है इतना पानी तुमने पी लिया, इतनी सी बोतल का पानी तुमने पी लिया. भाई कहता है कि ये बोतल मैंने भरी थी और तुमने ये पानी पिया. यानी कि एक डिनायल हो रहा है. मेरा भाई मेरी बात को डिनाई कर रहा है कि मैंने ये पानी की बोतल नहीं भरी, और मेरी एंड से उसकी बात का डिनायल हो रहा है कि भाई उसने पानी की बोतल नहीं भरी, ऊपर से पी भी ली. ये क्या है? आई एम अलेजिंग द फैक्ट, ही इज डिनाइंग इट.
ही इज अलेजिंग द फैक्ट, आई एम डिनाइंग इट, सो देयर हैज टू बी अ डिनायल, है ना, फैक्ट्स का डिनायल होना चाहिए। या तो भाई एडमिट करिए या तो आप डिनाई करिए। एक सिविल सूट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इश्यूज। इश्यूज के बिना क्या है आपका सूट? कुछ भी नहीं है। जब हमें पता ही नहीं, जब कोर्ट को पता ही नहीं कि आपके मामले का इशू क्या है, व्हाई डोंट यू थिंक इन जनरल सेंस? जनरल भाषा के अंदर कोशिश करिए इसको समझने की। व्हाट आर इश्यूज? भाई आपके जनरल इश्यूज आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही होते हैं इश्यूज, बट ये है कि इश्यूज फैक्ट के भी हो सकते हैं, लॉ के भी हो सकते हैं। इश्यूज में होता क्या है, या तो आप एडमिट कर रहे हो इन इश्यूज को, या तो मतलब एक पार्टी एडमिट कर रहा है, एक पार्टी डिनाई कर रहा है, एक पार्टी कह रहा है कि हाँ ये कार्य हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका स्टेप, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है, विटनेसेस को सम्मन किया जाता है। दोनों पार्टीज लिस्ट प्रोड्यूस करेंगी कोर्ट में कि हम इनको एज विटनेस बुलाना चाहते हैं, तो उनको सम्मन किया जाता है, कोर्ट उनको एग्जामिन किया जाता है। ऑर्डर 18 विटनेसेस से रिलेटेड है, इनका चीफ होता है, क्रॉस होता है, जो हमने एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स की अगर बात करी जाए तो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए कि सिविल सूट के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब ऑर्डर 20 के अंदर एक जजमेंट होता है, डिक्री का प्रिपरेशन होता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर डिक्री डिफाइंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मेंस की बात कर लीजिए, प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनली जजमेंट और डिक्री जो है वो प्रिपेयर कर दी जाती है, और ये जो एक सिविल सूट होता है उसकी कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज होती है इफ द अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट अपीलिंग। अगर अग्रीव्ड पार्टी अपील में जा रही है, रेफरेंस में जा रही है, रिवीजन में जा रही है, कोई भी पार्टी, आइदर पार्टी इन दीज मैटर, और साथ ही साथ अगर एग्जीक्यूशन, देखिए डिक्री पास हो जाती है, डिक्री पास होने के बाद मान के चलिए मेरे अगेंस्ट कोर्ट ने कहा है कि आप जो है आप इनकी प्रॉपर्टी फौरन रिटर्न करेंगी, इनको इनका हक देंगी, और आप अपनी बाउंड्री जो है वो हटा लेंगी, और इनकी बाउंड्री है इस एरिया में। तो डिक्री इशू करके मेरी राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, हम दोनों के जो डिस्प्यूट में थे। अब मैंने मान के चलिए बात नहीं मानी, तो भाई जो ऑपोजिट पार्टी है वो हाथ पे हाथ रख के थोड़ा ना बैठेगा। ही विल नॉट सिट आइडल, ही विल गो टू द कोर्ट एंड ही विल आस्क दैट वॉट एवर डिक्री यू हैव पास्ड, द अदर पार्टी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, ही हैज नॉट एक्टेड अपॉन द डिक्री, नाउ व्हाट, नाउ कोर्ट विल ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, वो जो डिक्री पास करी गई उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना। तो डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर के लिए डिक्री पास करी गई है, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट करी गई है, तो इसी प्रकार से इसको एग्जीक्यूट करा लिया जाता है। तो ये हैं कुछ स्टेजेस सिविल सूट के अंदर विच यू शुड हैव बीन नोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए आपके बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लेके आए हैं। सो इट हैज टू बी क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट गोज। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, whether a judgment in a suit between A and B that holds that A has purchased the immovable property from B. A is a judgment in personam, B is a judgment in rem, C is neither judgment in rem or in personam, D it is binding on all third parties, it is binding on all third persons unconnected with the suit who could have filed an appeal after obtaining the leave of appeal। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वेश्चंस यहाँ पे जो डीजेएस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके ऑप्शंस को अननेसेसरली ट्विस्ट किया जाता है, और कई बार स्टूडेंट्स का ये होता है ना, ये होता है कि ऑप्शंस में से क्या चूज करें, तो उसमें से वो सबसे लंबा ऑप्शन जो होता है वो बड़ा सेफ होता है उनके लिए, उसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक जजमेंट एक सूट में जब पास किया गया है ए और बी के, यानी कि ए वर्सेस बी था, और इसमें उन्होंने क्या कहा, और इस जजमेंट के माध्यम से ये कहा गया कि ए ने परचेज करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी से। ए ने मान के चलिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग जो है बी से खरीदी थी, ये जो है ये डिक्लेयर कर दिया है सूट के द्वारा, तो यानी कि ये सूट इसके फेवर में पास हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए। तो ये इसके हिसाब से क्या होगा, क्या ये जजमेंट इन पर्सोनम होगा
क्या ये जजमेंट इन रेम होगा? इसका करेक्ट आंसर ए है, इट इज अ जजमेंट इन पर्सोनम। हाउ? आई विल टेल यू नाउ। देखिए क्या होता है, अ जजमेंट, ओ सॉरी, इन पर्सोनम। इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है अ जजमेंट कैन बी enforceable, it can be enforceable against the person wherever he or she is। यानी कि ये जो जजमेंट आया है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैंने परचेज करी थी, तो ये अगर हम चाहें तो ये जजमेंट एनफोर्सेबल करा सकते हैं अगेंस्ट द पर्सन वेरेवर ही इज। अब ऑन द अदर हैंड, इफ द सूट इज टू डिटरमाइन द टाइटल, अगर हमें सूट से टाइटल को एग्जामिन करना है, हमें टाइटल पता लगना है कि भाई ये किसका सूट है, ओनरशिप का मान के चलिए मामला है, तो इसको कहा जाएगा ये इन रेम है। देन द एक्शन मस्ट बी फाइल्ड वेल द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। यहां पे पर्सोनम में कहीं भी हो तुम, आप कहीं पे भी हो, ये मेरी राइट एग्जामिन कर ली गई है, लेकिन यहां पे जहां पे टाइटल होता है आपको वहीं पे फाइल करना होगा जहां पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है, एंड इज ओनली एनफोर्सेबल देयर। एग्जाम्पल्स देखिए, इफ एक्स who is a seller and Y is a purchaser enter into an memorandum of understanding for sale of land, Y will only have the rights. See, Y has purchased the land and he has the rights in personam. Here A will have the right in personam, as simple as that, against X. However, after execution and registration of sale deed, Y will have the rights in rem against a world at Raj। यहां पे क्या है कि जैसे ही हमने रजिस्टर करा लिया, अब वो प्रॉपर्टी मेरी हुई और इस सबके अगेंस्ट जो है ये प्रॉपर्टी मुझे मेरी होगी, मेरी ओनरशिप होगी। ये हो गया। दूसरा देखिए, ऑन अ सेल ऑफ कार द राइट टू रिसीव सेल प्रोसीड्स, ऑन अ सेल ऑफ कार द राइट टू रिसीव द सेल प्रोसीड्स इज अ राइट इन पर्सोनम enforceable only against the purchaser of the car। अब ये जो कार है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हियर, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपने होल्ड्स दैट ए हैड परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी ए ने बी से ली थी, तो बी की यहां पे अगर ओनरशिप बी की यहां पे थी, बी से खरीदी तो उसका मतलब ओनरशिप बी की थी, तो ए को जो पैसा देना है वो बी है, बी को देना है, और राइट इन पर्सोनम किसके पास है? राइट इन पर्सोनम जो है वो बी के पास आ जाएगी, बी के पास आ जाएगी। किस, अभी यहां पे क्लियर नहीं किया है, यहां पे ये चीज क्लियर नहीं किया है कि ये जजमेंट किसके फेवर में आया है, ये चीज क्लियर नहीं है। हेंस राइट इन पर्सोनम हम एग्जांपल से देख रहे हैं कि बी के पास है, यानी कि जो सेल हुआ था ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसका जो पैसा आना था, इसका जो मनी आना था वो बी के पास आना था, बिकॉज इस प्रॉपर्टी जो ए ने बी से परचेज करी ये राइट इन पर्सोनम की तरह एग्जिस्ट कर रही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे देखिए, इफ ए एडवांसेस अ लोन टू बी, ए विल ओनली हैव अ राइट इन पर्सोनम अगेंस्ट बी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी कि ये राइट, आप ध्यान दीजिए ना इस पॉइंट पे, जैसे ही कार खरीदी, कोई लोन लिया, तो वो राइट उस पर्सन के अगेंस्ट होगी ना मेरे पास अवेलेबल, यानी कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट तो नहीं होगी। द राइट विल नॉट बी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट ओनली द पर्सन विथ हुम आई हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट और सेल। ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। ओनरशिप ऑफ अ हाउस इज अ राइट इन रेम, मेरा घर है, अब कोई आए, कोई कहीं से भी कोई ट्रेसपासर आ रहा है, तो भाई हम कहेंगे ये मेरी राइट है ना। हाँ, लेकिन अगर मैंने घर किसी से लिया हुआ है, XYZ किसी पर्सन से मैंने घर लिया हुआ है, अब उस घर की जो कीमत है वो अभी मैंने उसको दी नहीं है, तो वो जो XYZ पर्सन है उसके लिए वो राइट इन पर्सोनम होगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। या फिर जो रजिस्ट्रेशन के जो कागजात हैं वो उस पर्सन ने हमें नहीं दिए अभी तक कि जिससे हमने घर लिया था, तो मेरी वो राइट इन पर्सोनम है उससे कि आप मुझे वो कागजात दीजिए। ये होता है बेसिकली। तो उसी तरह से देखिए, राइट टू रिसीव रेंट फ्रॉम अ टेनेंट इज अ राइट इन पर्सोनम, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ ल्यूनेटिक
requires permission of the court to file a suit for declaration. अगर उसको डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है तो यहां पे क्या उसको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है? क्या लगता है आपको? सूट अगेंस्ट माइनर और ल्यूनेटिक पर्संस पढ़ा है आपने? मैं आपको बता दूं यहां पे फ्रेंड्स कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर डिक्लेरेशन की बात करी जाए। अब यहां पे ये देख लीजिए आप, ऑर्डर 32 सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर और पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला रूल देखिए क्या कहता है यहां पे, माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड, एवरी सूट बाय अ माइनर पर्सन shall be instituted in his name, नाम उसी का होगा, by a person who in such suit shall be caused as the next friend. और यहां पे एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस ऑर्डर माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड हिज मेजॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 वेयर द सूट रिलेट्स टू एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन क्लॉजेस ए बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट। तो ये बताया गया है इसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा no specific permission is required of the court. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिव्यू पिटिशन। अब रिव्यू के बारे में देखिए हम डिटेल में बात करने वाले हैं, आप अपने नोट्स को निकाल लीजिए, उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए, अ रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल वेयर, कब रिव्यू पिटिशन मेंटेनेबल होगी? पहला, द रिव्यू एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन अपील विच इज पेंडिंग। बी, the opposite party files an appeal after the review petition was filed. क्या कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? जिसमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा है वो अपने आप कट हो जाएगा। The review applicant has already filed an appeal which is right now pending. C, appeal filed by review applicant has been dismissed by a speaking order on merits. Dismissal हो गया on merits. D, गया मतलब केस आपका। D, फाइलिंग ऑफ अपील बाय एनी साइड इज इमटेरियल। कह रहे हैं क्या अपील किसी भी साइड में फाइल करना इमटेरियल है? अब करेक्ट आंसर हमें पता है क्या है, करेक्ट आंसर यहां पे बी है, मैं आपको बता दूं बी हियर इज द करेक्ट आंसर। बट हाउ इसको हम लोग देखेंगे। द ऑपोजिट पार्टी फाइल्स एन अपील, ऑपोजिट पार्टी ने एक अपील फाइल करी हुई है आफ्टर द रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड। आफ्टर द रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड ही वेंट इनटू अपील। रिव्यू पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल होगा। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे रिव्यू की। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है जनरल सेंस में? इट मींस टू रिकंसिडर वंस अगेन। ठीक है, किसी भी मामले को अगर फिर से रिकंसिडर किया जा रहा है। अब कौन सा मामला होगा? जब जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है डिक्री का या ऑर्डर का बाय द वेरी सेम जज। मैंने वो डिक्री पास करी थी, मैंने वो ऑर्डर पास किया था, अब मैं ही उसको रिव्यू कर रही हूं, जुडिशियली एग्जामिन कर रही हूं और मैंने ही इसको पास किया था, उसको क्या कहा जाता है? रिव्यू कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में उसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। अब इसका एक एक्सेप्शन, यानी कि रिव्यू इस चीज का एक्सेप्शन है दैट वंस अ जज pronounces or signs a judgment, he loses the control over it, also known as functus officio. अब कंट्रोल नहीं रहा, नहीं, रिव्यू इसके अगेंस्ट बात करता है। आगे आइए, अगर हम लोग रिव्यू के ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले कई बार देखा गया है कि ह्यूमन से एरर हो सकते हैं, उसी तरह से कोर्ट में भी एरर हो सकते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में भी एरर हो सकते हैं और ये मिस्टेक्स को करेक्ट करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। आप जानते हो कि अगर ऐसे जजमेंट्स को हम अलाउ करेंगे, such judgments are allowed, then there has to be miscarriage of justice. Along with that, the law has to bend before the justice. Always and always, many provisions. See what Article 142 talks about. Constitution Article 142 talks about to do complete justice. And if we talk about the recent judgment, जो अभी एक judgment पास किया गया शिल्पा शैलेश के केस में, उसमें क्या हुआ? They were talking about mutual consent में there has to be a time of 6 to 18 months. Now, Supreme Court has clearly said that the time period of 6 to 18 months here in the matters of irretrievable breakdown of marriage can be waived off. So, the law has to bend for justice. It has to bend. Lastly, rectification of an order stems from the fundamental principle justice is above law. अब अगर हम लोग रिव्यू की बात करें तो रूल 1 ऑर्डर 47 का कहता है क्लियरली, एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ नॉन अपीलेबल डिक्री
मे अप्लाई फॉर रिव्यू, पहला इंस्टेंस बताया कि डिक्री नॉन अपीलेबल है, या रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अ पर्सन हु डिड नॉट अपील द केस डिस्पाइट ऑफ राइट ऑफ अपील। अब कोई ऐसा इंसान जिसके पास राइट ऑफ अपील तो थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपील ही नहीं किया, डिस्पाइट बीइंग हैविंग राइट ऑफ अपील। उसके बाद, a person aggrieved by the decision on a reference and the reference is made by the court of small cause, small causes कोर्ट से एक रेफरेंस किया गया, उससे अग्रीव्ड पर्सन है। समझ रहे हो आप, ये इंस्टेंस है रिव्यू का। साथ ही साथ, a person aggrieved is one who has suffered legal grievance, judgment is pronounced, he has been wrongly deprived and he has been wrongly refused। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इसको हम अग्रीव्ड मानेंगे, ये मामले हैं। उसके साथ ही साथ ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू की अगर हम लोग बात करें, द अग्रीव्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिव्यू इफ देयर इज एनी न्यू और इंपॉर्टेंट मैटर। अब उसको लग रहा है जजमेंट पास हो गया है, अगर मान के चलिए अब उसको ये लग रहा है कि एक नया मैटर निकल के आया है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो कोर्ट के नॉलेज में आना जरूरी है, और साथ ही साथ एंड जब जजमेंट पास किया गया उससे पहले इसको प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता था। मान के चलिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आफ्टर द जजमेंट हुआ है, विदाउट ड्यू डिलिजेंस। दूसरी चीज, कोई एरर या डिफेक्ट निकल के आया है जो एपेरेंट है, जो सामने सामने आपको दिख रहा है कि जी हाँ ये एक डिफेक्ट है। साथ ही साथ रिव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है सम अदर मैटर्स में, मान के चलिए कुछ और मैटर है और उसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई रिव्यू इंपॉर्टेंट है, तो ये कर सकते हैं आप, राइट। आगे देखिए, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। रिव्यू, इसका फॉर्मेट रूल 3 के अंदर, इट शैल बी इन द सेम एज प्रोवाइडेड फॉर अपील। रूल 4 ऑब्जेक्ट हम लोग ने देख लिया है, इसकी हेडिंग चेंज कर देंगे हम बाद में। रूल 4 कहता है अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एप्लीकेशन का, देन इट शैल बी रिजेक्टेड। रूल 5 here talks about that judge who passed the decree is not available, the judge having same jurisdiction shall hear। तो एब्सेंस पीरियड प्लस 6 मंथ्स का टाइम होता है यहाँ, जब कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग रिव्यू। और इसी तरह से हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी AR अंतुले का केस है। सेक्शन 1 आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट सेज दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, ध्यान दीजिएगा। The review applicant has already filed an appeal which is pending. The opposite party has files an appeal after the review petition was filed. तो यहाँ पे क्यों नहीं मेंटेनेबल होगा, क्या रीजन क्या दिख रहा है आपको कि मेंटेनेबल नहीं होगा? भाई मैंने तो नहीं फाइल करी, ऑपोजिट पार्टी ने अपील फाइल करी हुई है और मैंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी थी, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे मेंटेनेबल होगी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। Whether a defendant can file an application for disposal of the suit under order 12 rule 6 of CPC। क्या एक डिफेंडेंट, क्वेश्चन समझिएगा पहले, क्या एक डिफेंडेंट फाइल कर सकता है एक एप्लीकेशन डिस्पोजल, सूट के डिस्पोजल के लिए अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ CPC? क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर कौन सा है, राइट पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है रूल 6 ऑर्डर 12 के अंदर। एडमिशंस के बारे में बात करता है ऑर्डर 12। यहाँ पे बात करी गई है जजमेंट ऑन एडमिशन की, तो यहाँ पे डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। देखिए कैसे, वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट, अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है, हैव बीन मेड आइदर इन द प्लीडिंग, प्लीडिंग में किया गया या अदरवाइज, वेदर ओरली, ये ओरली हुआ या राइटिंग में हुआ, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑन इट्स ओन मोशन एंड विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज make such order or give such judgment as it may think fit having regard to such admissions। और एक और, whenever a judgment is pronounced under sub rule 1, a decree shall be drawn upon in accordance with the judgment
and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. तो यहां पे क्या एप्लीकेशन किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 12 रूल 6? बिल्कुल किया जा सकता है. यस, डिफेंडेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन, क्योंकि यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एडमिशंस के मामले में हम डिफेंडेंट को ये राइट नहीं देंगे, लेकिन ये राइट होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है, फ्रेज आइदर पार्टी. क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे आ जाइए. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो ऑप्शंस जो है बी और सी, इसमें डाउट है. देखिए, अगर हम स्टेज की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम स्टेज की बात करें, यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, वेदर अ सूट डिसमिस्ड इन अ डिफॉल्ट कैन बी रीस्टोर्ड. अभी रिस्टोरेशन की बात हो रही है, और यहां पे जो उन्होंने बात करी है, ये बात करी है कि नोटिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सर्व किया गया है ऑपोजिट पार्टी को कि नहीं. तो ऑर्डर तब नहीं किया जाएगा जब एप्लीकेशन का जो नोटिस है, यानी कि यहाँ पे रिस्टोरेशन एप्लीकेशन का नोटिस गया है कि नहीं गया. ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, तो हेंस यस भी हो सकता है, और सी रिक्वायर करते हैं कि डिफेंडेंट को हर्ट, मतलब ही हैज टू बी हर्ट. तो इस पॉइंट में मैं बता सकती हूँ कि सूट को रिस्टोर कोर्ट के एंड से किया जा सकता है अगर डिफेंडेंट और काउंसिल नहीं प्रेजेंट है और उनको बेसिकली वर नॉट प्रेजेंट ऑन द डेट विदाउट नोटिस. ऑर्डर तो रिस्टोर करा जा सकता है क्योंकि एप्लीकेशन के नोटिस की बात हो रही है. इस पॉइंट पे इसके क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिव्यू करके मैं आपको बताती हूं. नेक्स्ट आइए. उसके बाद वेदर द जजमेंट डेटर कैन प्लीड सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी डिक्री बाय पेमेंट इन कैश आउटसाइड द कोर्ट. क्या कोर्ट के बाहर जजमेंट डेटर जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ मनी डिक्री, जिसका पैसा उसने लिया हुआ है मान के चलिए, और जजमेंट डेटर जो कहता है कि आप मामला जो है सॉल्व हो जाए, द डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व, तो क्या किया जा सकता है? तो ये तभी अलाउ किया जाएगा इन चारों ऑप्शंस को अगर देखेंगे. नो, yes if money is paid in cash before a third person, only if the document recording the payment was signed by the decree holder before the notary public or oath commissioner. यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. yes if the payment or adjustment is incorporated into a document, तो यहाँ पे इसको हम अलाउ कर सकते हैं मनी डिक्री को. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 7, whether a suit can be compromised without filing an application under order 13 rule 3 of CPC. क्या एक सूट को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है बिना किसी एप्लीकेशन के जो रिक्वायर्ड है ऑर्डर 13 रूल 3 के अंदर? क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ध्यान दीजिए. नो, एज अ रिटन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 CPC must be signed by both the parties. B, yes, but only when both the parties file affidavits. C, yes, if the compromise is in writing. D, yes, but only if whole of the subject matter of the suit and not part thereof has been adjusted. यहाँ पे पहली चीज तो ये 23 होगा. ठीक है, दूसरी चीज आगे आइए, मैं बताती हूँ आपको. कॉम्प्रोमाइज की बात करी जाए, कॉम्प्रोमाइज की यहाँ पे बात करी जाए तो देखिए, where it is proved to the satisfaction of the court. पहले मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. कैसे, ये बताती हूं. where it is proved to the satisfaction of the court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise in writing and signed by the parties. तो ये चीज एक मैंडेटरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. तो ये हो सकता है yes if the compromise is in writing and signed by the parties, है ना. or where the defendant satisfy the plaintiff in respect to whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. और ये जो आप देख सकते हैं ना, इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन मार्क इट इन योर बेयर एक्ट एज वेल. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लेंटिफ कैन फाइल अ सेकेंड सूट ऑन द सब्जेक्ट मैटर of an earlier suit filed by him. A, where the earlier suit was unconditionally withdrawn. B, where the first suit was dismissed in fault in the presence of the defendant subject to the law of limitation.
सी व्हेन द फर्स्ट सूट वाज डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स बट द प्लेंटिव फील्स दैट द डिसीजन इज रॉन्ग। तो क्या एक प्लेंटिव एक सेकंड सूट को ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अर्लियर सूट फाइल्ड बाय हिम, क्या ये करा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेम ऑफ सूट के अंदर। और यहाँ पे क्लियरली आप देख लीजिए रूल 2 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। समझ में आया? आप पूरा क्लेम रेज करिएगा। एवरी सूट shall include the whole of the claim which you are asking for, the plaintiff specifically, which plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. अब मान के चलिए उसको कोई क्लेम रिलिंक्विश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा आपके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए, तो वो कर सकता है, लेकिन सूट पूरा क्लेम जो है वो इंक्लूड करेगा। तो यहां पे क्या सेकंड सूट सब्जेक्ट मैटर एक ही है ऑफ एन अर्लियर सूट फाइल्ड बाय हिम? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किसी भी मामले में आप देख सकते हैं नहीं हो सकता है, डी नन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स फाइल्स अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट injunction against Y and files an application for temporary injunction under order 39 Rule 1C CPC. The court dismisses the application for temporary injunction. 2 months later, during the pendency of the suit, X again files for temporary injunction under order 39 Rule 1 CPC, citing new facts and changed circumstances. तो यहाँ पे A, the second application is barred by res judicata. B, second, the res judicata does not apply to interlocutory orders like temporary injunction. C, the decision given by the court on first application is binding. D, the second application is barred by the principle of res sub judice. क्या करेक्ट आंसर होगा? B here would be the correct answer. res judicata interlocutory applications जैसे कि temporary injunction इन पे अप्लाई नहीं करता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Section 89 of CPC provides that court shall attempt settlement of disputes A in all cases, B in cases where both the parties specifically plead for settlement, C in cases where at least one of the parties plead for settlement, D in cases where the court is satisfied that there is a possibility of arriving at a settlement that may be accepted by both the parties. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? In a case where court is satisfied that there is a possibility, at least there has to be a possibility if you want alternative dispute resolution if you are resolving, तो D यहाँ पे correct answer हो जाएगा। देखिए 89 talks about settlement of disputes outside the court, where it, सबसे पहली लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, where it appears to the court that there exists element of settlement, that there exists elements of settlement which may be accepted to the parties. The court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations. Moving forward, अब देखिए ADR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Malimat committee along with 129th report of the law commission proposed the idea of conciliation as a technique of ADR. The intention behind was to make the public aware of the options available to them for resolving their disputes by utilizing the modes of ADR. Along with that, Section 89 CPC was enacted through the CPC Amendment Act 1999 and it was effective from the year 2002. Thus, with the motive of bringing a significant reduction in number of pending cases, 89 talks about ADR. Moving forward, up question देखिए, question number 11. A sues B for the specific performance of contract. In the plaint, A seeks the relief of specific performance. He does not seek any relief in the alternative. The court determines that it cannot order the specific performance of the contract. Can the court award compensation instead? क्या court compensation दे सकता है? तो देखिए, yes, as specific relief act directs compensation. Compensation can be awarded since order 7, rule 7 of CPC provides that any other relief can be awarded. C, compensation can be awarded only after the court allows the plaint to be amended. C correct हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप जानते हो प्लेंट के अमेंडमेंट के बारे में,
क्लियरली दिया गया है और यहाँ पे कॉम्पेंसेशन तभी अवॉर्ड किया जाएगा जब प्लेंट को अमेंड किया जाएगा, ताकि आप क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन को उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not have to be pleaded in an application for temporary injunction? A, mala-fide intention of the opposite party, B, irreparable harm to the applicant, C, prima facie case, D, balance of convenience in the favor of the applicant। करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, इन चारों में से टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर आपको मैलाफाइड इंटेंशन ऑपोजिट पार्टी के जो है वो प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है, एक प्रिवेंटिव टाइप की रिलीफ होती है जो कोर्ट के डायरेक्शन, उसके डिस्क्रिशन, एक्चुअली कोर्ट के डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग आपको अवॉर्ड करी जाती है। टेम्परेरी इंजंक्शन किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर मान के चलिए अगर कोई बाउंड्री खिंच गई, आपको उस बाउंड्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको उससे डिस्प्यूट है, मान के चलिए कोर्ट से आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब कोर्ट के द्वारा आप ये करवाना चाहते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को रुकवा दें, तो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर कर दिया जाता है। प्रोविजंस है सेक्शन 94C, ऑर्डर 39, रूल 1 1 से लेकर के 5। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है कोर्ट का, डिफाइन नहीं किया गया है, बस इसमें कोर्ट क्या कहता है, किसी को कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए या आप ये काम मत करिए। आगे चलिए, टेम्परेरी इंजंक्शन एक जुडिशियल प्रोसेस है बाय विच अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, एक इक्विटेबल रिलीफ होती है। ठीक है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, यानी कि वो देखेगा क्या रीजनेबल है, क्या ये जुडिशियस होगा अगर हम इसको अलाउ करेंगे, क्या ये लीगल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर को, वही मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन मान के चलिए अगर आप रुकवा रहे हैं, तोड़ा फोड़ी हो रही है, वो रुकवा रहे हैं, तो वो प्रोविजनल एक तरह से रेमेडी होती है जो पार्टी को दी जाती है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। राइट, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे इंजंक्शंस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट इंजंक्शंस। टेम्पररी इंजंक्शंस जो है वो आपको सीपीसी के अंदर स्पेसिफिकली मिलेंगे और ये एक्चुअली टाइम लिमिटेड होते हैं और आपको इसका जो लिंक्ड प्रोविजन है, यानी कि सिमिलर टाइप का प्रोविजन सेक्शन 37 SRA, सीपीसी के अंदर सेक्शन 94C, जैसा कि मैंने बताया, रूल 1 to 5, ऑर्डर 39। परमानेंट इंजेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली एसआरए के अंदर देखने को मिलेगा, सेक्शन 37 से लेकर के 42। ठीक है, बस इंजंक्शंस के माध्यम से कोर्ट ऑर्डर करता है, किसी से कुछ काम करवाता है या किसी का काम रोकता है। मान के चलिए अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी निकल के आई है, वो कोर्ट तक जाती है और कोर्ट को लगता है कि वाकई में ऐसा कोई मामला निकल के आ रहा है जहां पे हमें मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जुडिशियस होगा, रीजनेबल होगा, तो वो ये कर देता है। तो इंजंक्शंस का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोहिबिटरी होते हैं, मैंडेटरी नेचर के होते हैं, ये भी डिस्क्रिशनरी राइट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो है टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द स्टेटस को ऑफ द पार्टीज, यानी कि वो स्टेटस जो इस डिस्प्यूट के अराइज होने से पहले पार्टी एंजॉय कर रही थी, वो मेंटेन करना एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग। उस टाइम पे पार्टी का क्या स्टेटस था, और ये किसी भी स्टेज ऑफ द सूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इट प्रिवेंट्स एनी चेंज इन द सब्जेक्ट मैटर अंटिल द फाइनल डिटर्मिनेशन, राइट। और ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है किसके अगेंस्ट किया जाता है, आई होप इट इज विजिबल, किसके अगेंस्ट किया जाता है, तो ये पार्टी, कोई थर्ड पार्टी, नॉन पार्टी और ऐसी पार्टीज के अगेंस्ट किया जाता है जो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपको कहीं ना कहीं कोई हार्म या कोई इंजरी कॉज कर रही हो। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे ग्राउंड्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में है इन अ सूट एंड इट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, द प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड। मान के चलिए आप बेच रहे हैं उसको गलत तरीके से, सस्ते दामों में बेच दे रहे हैं, महंगे दामों में बेच दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, अपनी ओनरशिप हटा दे रहे हैं उसमें से। उसके बाद दूसरी चीज, डिफेंडेंट थ्रेटन्स, मान के चलिए वो थ्रेट कर रहा है, यही इंटेंस टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स। मान के चलिए उसने पैसा लिया हुआ है लोगों से, अब उनको डिफ्रॉड करने के लिए कि मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, बेच दे रहा है, वो रिमूव कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को। उसके बाद डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट,
अब वो प्लेंटिव को धमका रहा है कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ये कर देंगे, उसको तोड़वा देंगे, फुड़वा देंगे, ये सब ये हो गया। ग्राउंड क्या होते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने के? इट इज रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वेदर कॉम्पनसेशन इज क्लेम्ड और नॉट. The court may order grant a temporary injunction to restrain such act. यानी कि कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा और रिस्ट्रेन करेगा ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे एक्ट्स को, और मेक सच अदर ऑर्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग और एलिएनेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ. कोर्ट का कंसिडरेशन क्या होता है, किन चीजों पे कोर्ट का मैक्सिमम कंसिडरेशन होता है, ये 3 पॉइंटर्स जो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से लिंक्ड है. पहली बात, क्या कोई प्राइमा फेशी केस निकल के आ रहा है, क्या कोई ऐसा मामला निकल के आ रहा है जहां पे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस प्लेंटिफ के फेवर में है जिसने एप्लीकेशन फाइल किया है. और तीसरी चीज, वेदर द प्लेंटिफ वुड सफर इररिपेरेबल इंजरी. अगर टीआई हम ग्रांट नहीं करेंगे, कोर्ट ये देखेगा कि मान के चलिए किसी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन को अगर हम नहीं रुकवा रहे हैं और उससे प्लेंटिफ को बहुत नुकसान होगा, इररिपेरेबल इंजरी होगी, ऐसी इंजरी जो शायद रिपेयर ना हो सके, तो ऐसे में क्या कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा? अगर आप जज होगे आप भी करोगे, राइट? तो यही कंसिडरेशन होते हैं और इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पे जो अभी हम लोग ने देखा. और करेक्ट आंसर यहाँ पे मैलिफाइड इंटेंशन यहाँ पे नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखेगा कि ये क्लेम करेगा कि भाई मेरे फेवर में है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेशी केस है और इररिपेरेबल हार्म हो रहा है हमें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अच्छा, ये चीज हमारी मिसिंग है. अब पनिशेबल ऑफेंस होता है टीआई का अगर डिसओबीडियंस किया है आपने. रूल 2A इसके बारे में बात करता है और लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी करा था. इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंजंक्शन ऑफ रूल 1 और रूल 2, ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑन विच द इंजंक्शन इज ग्रांटेड, डिटेंशन होता है सिविल प्रिजन में नॉट मोर देन 3 months, अटैचमेंट भी हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज नॉट नेसेसरी. अब देखिए सीआरपीसी आ जाती है अपने आप सीपीसी में, क्या बताऊं मैं. तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चन सीआरपीसी का है, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज नॉट नेसेसरी टू एवर दैट द हस्बैंड हैज निग्लेक्टेड, ये तो होता है. हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस टू मेंटेन, बिल्कुल होता है. हस्बैंड हैज ट्रीटेड वाइफ विद क्रूअल्टी, वाइफ इज अनेबल. सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. क्रूअल्टी से क्या लेना देना है ना. Next question. A, an Indian citizen enters into a contract with B, a US citizen based in USA. Certain disputes arise under the contract and B files a suit in the matter in the Civil Court of New York. A files a counterclaim in the said suit. Subsequently, A files a suit in the same matter in the jurisdiction of the Civil Court in New Delhi. Is the latter court barred from trying the suit? क्या latter court barred होगा from trying the suit? क्या लगता है, पढ़ा हुआ है कि नहीं? सेक्शन 10 लास्ट लेक्चर भी हम लोग ने पढ़ा हुआ था. क्या लगता है व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या लगता है? A, yes, since this will lead to multiplicity of proceeding. B, yes, since the filing of a counterclaim, A has accepted the jurisdiction of the courts of New York. C, no, because the pendency of a suit. C, no, because the pendency of a suit in a foreign court does not precludes courts in India from trying a suit based on the same cause of action. A, who is an Indian citizen, he enters in a contract with B, who is a US citizen based in USA. All right. कुछ disputes arise होती हैं under the contract and B files a suit in the matter in the civil court of New York. A files a counterclaim in the said suit. Subsequently, A files a suit in same matter in the jurisdiction of the civil court in New Delhi. तो यहाँ पे क्या latter court, न्यू दिल्ली का कोर्ट क्या बार्ड होगा फ्रॉम न्यूयॉर्क कोर्ट? नो. कैसे ऐसे. सेक्शन 10 इसके बारे में बात करता है स्टे ऑफ सूट्स की. नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties. यानी कि यहाँ पे ट्रायल बार्ड होता है, इंस्टीट्यूशन बार्ड नहीं होता सेक्शन 10 के अंदर, याद रखिएगा. और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government.
एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट does not preclude the courts here in India from trying a suit founded on the same cause of action. Hence proved. आगे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट between two parties A and B, A files a suit in New Delhi where the cause of action arose. 2 days later, B files a suit in the same matter in Mumbai where A is resident. The pendency of the first suit is not brought to the notice of the court in Mumbai. The court pronounces judgment in the second suit before the first suit is decided. Would such operate as a bar on the court in New Delhi to try the suit in any further? A. Yes, the principle of res judicata will apply. B. No, the principle of res judicata only applies in the former suits. C. No, because the parties did not disclose the pendency. D. No, because the plaintiff is in the first suit is not the plaintiff in the second suit. A here would be the correct answer. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्चुअल है बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी. ए फाइल्स अ सूट इन न्यू दिल्ली वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज. 2 days later, B files a suit in the same matter in Mumbai where A is resident. The pendency of the first suit is not brought to the notice of the court in Mumbai. The court pronounces the judgment in the second suit before the first suit is decided. Would such decision operate as a bar on the court? As simple as that, yes, the principle of res judicata will apply. Next question. अच्छा, यहां पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A filed a suit against B seeking 3 reliefs. The matter was decreed in A's favor and the first relief was partially granted to A. तो A ने बहुत सारी रिलीफ्स जो है क्लेम करी थी अपने प्लेंट में, और इस मैटर में ए के फेवर में डिक्री आ गई थी. ये मामला कोर्ट ने कहा ठीक है, इनके मामले में बात नहीं करी, पार्शली ग्रांट कर दिया. द डिक्री वाज साइलेंट एज टू द अदर 2 रिलीफ्स. कैन ए फाइल अ सेकेंड सूट इन द सेम मैटर सीकिंग द फर्दर 2 रिलीफ्स? क्या जो फर्दर 2 रिलीफ्स बच रही हैं उसकी, क्या इसके लिए फिर से एक और सूट ला सकता है? क्या लगता है? अब यहां पे सीधा सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा. यस, द बार ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई सिंस द कोर्ट डिड नॉट एड्रेस द रिलीफ्स. Yes, because it will be assumed that the plaintiff was not given a fair hearing. D, the court has to determine on any case basis. देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, डिक्री was silent. Can A file a second suit in the same matter seeking the further 2 reliefs? No, he cannot file a second suit because why? The bar of res judicata will apply. So no उस सेंस में res judicata will apply उस सेंस में करेक्ट होगा. आगे देखिए, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए आप देख लीजिएगा सेक्शन 11. काइंडली रेफर टू सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5. It clearly says that if any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of section 11 be deemed to have been refused. जा चुके हैं, किनारे लग चुके हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The subject matter jurisdiction of a civil court extends to all claims of civil nature. B, all claims of civil nature unless their cognizance is expressly or impliedly barred. C, all suits of civil nature where express provision of statutory law नहीं. D, only those claims of a civil nature. आपको जहां पे भी ये दिख जाए ना, wherever you see this here students, expressly or impliedly barred, that would be the correct answer. So here with that reference B would be the correct answer, right? ये देख लीजिए, courts to try all suits unless barred. The heading also says that the court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of civil nature, but excepting those suits where the cognizance is either expressly or friends impliedly barred, right? It is written there specifically. Moving forward,
A suit under Order 37 of CPC can be based on a hundi, B, an oral contract, C, a claim for general damages, D, none of the above. यहाँ पे correct answer हो जाएगा a hundi. How? I will just let you know. Order 37 summary procedure here clearly says that this order shall apply to following courts: High Courts, City Civil Courts, Small Causes Courts and other courts, provided that in respect of courts referred in clause B, other courts. The High Court may by notification in official gazette, it talks about the procedural aspect. But clause 2 here is important for us. It clearly says that subject to the provisions of sub-rule 1, the order applies to following classes of the suits, namely suits upon bill of exchange, hundis, promissory notes. B, suits in which the plaintiff seeks only to recover a debt or liquidated demand on a written contract, on an enactment, some fixed sum of money, on any guarantee. So here we will be governing by A. चलिए आगे आ जाइए. Next question. Issues in a civil suit are framed. A, when the plaint is filed. B, when the written statement is filed. C, after the affidavit by way of evidence has been filed. D, before the final arguments. क्वेश्चन नंबर 19, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ही जो WS होता है, यानी कि प्लेंट के बाद जैसे ही जो WS होता है उसके बाद ही ये जो इश्यूज होते हैं ना फ्रेंड्स, ये इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेज है, जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है यहाँ पे, ये आपको क्लियर होना चाहिए. हियर तो यहाँ पे होता है इश्यूज को फ्रेम करने की बात करी गई है और ऑर्डर 14 के अंदर ये दिया गया है. इश्यूज को फ्रेम किया जाता है जैसे ही WS फाइल किया जाता है. WS के बाद डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जाता है, पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है और फौरन ही उसके बाद एडमिशन देखा जाएगा, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन. दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द एडिशनल स्टेप्स, द मैंडेटरी स्टेप्स. भाई एडमिट तो नहीं कर रही है पार्टी, उसके बाद जो है फौरन इश्यूज को फ्रेम कर लिया जाता है. उसके बाद कहीं विटनेसेस को देखा जाता है और जजमेंट आता है. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. हियर तो issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party. मैं कह रही हूं कि हाँ ये चीज मैंने करी और दूसरा कह रहा है नहीं भाई तुमने नहीं करी. तो material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defense. Each material proposition affirmed by one party and denied by other is a part of a distinct issue. Facts के भी होते हैं, law के भी होते हैं. At the first hearing of the suit, the court shall, after the reading of the plaint and the written statement, if any, and after the examination under Rule 2 of Order 10, and after hearing the parties or their pleaders, ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance. क्या issue क्या है उनका? Right. चलिए आगे आ जाइए. When the defendant is proceeded ex parte after filing written statement. When the defendant is proceeded ex parte after the filing of written statement, A, defendant cannot participate, defendant can participate, defendant to participate in future must ask for setting aside the ex parte order. Plaintiff has an option to allow the defendant. Correct answer क्या होगा इस क्वेश्चन का? The defendant can participate in future proceeding. बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि defendant ex parte, the defendant is proceeded ex parte after filing the written statement, he can participate in future proceeding. B here would be the correct answer. और यहाँ पे setting aside की बात करी गई है against the defendant. In any case, the defendant to participate in future proceedings must ask for setting aside of the ex parte order. यहाँ पे B और C करेक्ट हो जाएगा. When the defendant is proceeded ex parte after the filing of written statement, the defendant can participate in future proceedings. तो यहाँ पे ही both the answers, इसका भी मैं आपको करके बताऊंगी. The review had to be done. I'll just let you know. All right.
नहीं, वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है, ही कैन पार्टिसिपेट इन दी फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। आप देख सकते हैं, इन एनी केस इन विच डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड, एंड इफ ही satisfies that the summons were not duly served or that he was prevented by any sufficient cause, the court may make an order setting aside as against him upon such terms as to cause payment to court otherwise. Right. Provided further that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons. When an ex parte decree is passed, the defendant would normally ask for setting aside of ex parte decree A by the application under Order 9 Rule 13 of CPC. What would be the correct answer of this question? क्या लगता है? अभी हम लोगों ने देखा Order 9 Rule 13 absolutely correct. इसमें दो ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं. The defendant can participate. Defendant to participate in future proceedings must ask for setting aside. I'll just let you know. He can participate, that is for sure. So, बिल्कुल Order 9 Rule 13. Can a civil court examine a party at first hearing? No. B. Court cannot examine till evidence has been recorded. C. Court should not examine. A party as opposite party has a right to cross-examine. Will this affect the right of court to examine? D here is the correct answer. बिल्कुल कर सकते हैं. और यहाँ पे Order 10 जो है वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे आ जाइए. द टर्म बेलर, अब ये तो ऑब्वियसली CPC का नहीं है, लेकिन बेलर हैज बीन डिफाइंड इन दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. चलिए, डज द सिविल कोर्ट ट्रायल कोर्ट हैव द पावर टू रेस्टिट्यूशन ऑन वेरिएशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर इन अपील? क्या ये सिविल कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 24. ए, ट्रायल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस दैट हैज पास्ड द डिक्री हैज द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन. बी, अ सेपरेट सिविल सूट हैज टू बी फाइल्ड फॉर रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 of the CPC. Next, trial court of first instance that had passed the decree has no power of restitution. There is no power. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, a separate civil suit has to be filed for restitution when section 144 of the CPC applies. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल A हो जाएगा. The trial court of first instance that had passed the decree has the power of restitution. देखिए सेक्शन 144 क्या कहता है? Where and in so far as the decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or other proceedings. तो restitution में क्या होता है? restitution में ये होता है कि अगर अपील में जाके जो डिक्री है वो रिवर्स हो गई, तो ऐसे में क्या है, मान के चलिए इनको ये राइट दे रहे थे तो रिवर्स करके अब राइट इनको मिल रहा है, सेट असाइड हो गई, मॉडिफाई हो गई एनी सूट में, किसी भी सूट में, द कोर्ट विच पास द डिक्री. सो हियर द सिविल कोर्ट वेरिएशन ऑफ अ डिक्री इन एन अपील क्या लगा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, द कोर्ट पास द डिक्री शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन अदरवाइज कॉज सच रेस्टिट्यूट टू बी मेड एज विल. तो यहाँ पे किया जा सकता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा. बिल्कुल, ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे आ जाइए. Next question, garnishee proceedings under the CPC can be instituted. A, for attachment of debt, share and other property not in possession of the judgment debtor. B, attachment of property of which owner is not the owner is not known. C, only for attachment of property which cannot be estimated in terms of money. D, only for attachment of a share in joint family property. अब question number 26, clearly A here would be the correct answer. देखिए, गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? कौन है गार्निशी? आपको पता होना चाहिए. हु इज द गार्निशी? ही इज जजमेंट डेटर्स डेटर. ये जजमेंट डेटर का डेटर होता है, यानी कि वो इंसान जिसने, हो सकता है जजमेंट डेटर ने उससे पैसे दिए हो और वो अभी पैसे वापस नहीं किया हो टू द जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर ने उसको पैसे दिए हो कि उसको जरूरत होगी तो जजमेंट डेटर ने उसको पैसे दे दिए होंगे. तो क्या है वो जजमेंट डेटर का? जजमेंट डेटर आपका डेटर है, लेकिन वो बंदा जजमेंट डेटर का भी डेटर हो गया, राइट? तो गार्निशी हैज टू ओबे द लॉ. डिस्क्रिशनरी पावर होती है ये कोर्ट की, और ये जुडिशियल ऑर्डर होता है. और यहाँ पे गार्निशी को पे करने के लिए कहा जाता है डेट. जजमेंट डेटर नहीं, यहाँ पे गार्निशी को ये डायरेक्ट किया जाता है कि ये जो पेमेंट है ये जजमेंट डेटर को ना करके ये डायरेक्टली डिक्री होल्डर को कर दे. नोटिस टू गार्निशी मैंडेटरी. अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ये हो सकता है प्रोसीडिंग वॉइड हो जाए. ठीक है, गार्निशी ऑर्डर.
चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन विथ रिगार्ड टू एन इंटरप्लीडर सूट इज इनकरेक्ट। यहां पे बात करी गई है इनकरेक्ट प्रपोजिशन की, राइट। तो देखिए, डिफेंडेंट्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर, प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। रियल डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन द प्लेंटिफ एंड ओनली वन ऑफ द डिफेंडेंट्स। डी, प्लेंटिफ मस्ट बी रेडी टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये जो है ये इनकरेक्ट है। क्योंकि क्या होता है इंटरप्रीटर सूट के अंदर, पहले प्रोविजंस आप देख लीजिए, सेक्शन 88 ऑर्डर 35, 6 रूल्स हैं ऑर्डर 35 में। इंटरप्रीटर सूट एक स्पेशल टाइप का सूट होता है, यानी कि कोई भी सम ऑफ मनी, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जिसपे दो लोग या दो से अधिक लोग लड़ रहे हैं कि ये इसकी ओनरशिप से रिलेटेड लड़ रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन इस टाइम पे ये प्लेंटिफ क्या कर सकते हैं, प्लेंटिफ कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग्स टू मी, दिस प्रॉपर्टी इज सच अ प्रॉपर्टी इन विच आई हैव जीरो इंटरेस्ट, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये आप राइटफुल ओनर को ये प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो इसी से रिलेटेड ये इंटरप्लीडर सूट होता है, राइट। ये एक स्पेशल काइंड का सूट होता है। तो यहां पे इंटरप्लीडर सूट में व्हाट इज इंटरप्लीडर सूट, ध्यान दीजिएगा, अ सूट वेयर द डिस्प्यूट इज नॉट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बट बिटवीन डिफेंडेंट्स इंटरसी। प्लेंटिफ तो कोर्ट जा रहा है, वो जो दोनों लड़के हैं वो डिफेंडेंट हो गए, राइट। और एक चीज आपको यहां पे जाननी है, प्लेंटिफ क्या कहेगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हाँ कोर्ट में आने के लिए जो भी उसको खर्चा पानी लगा है, कॉस्ट है, जो भी उसके चार्जेस है वो उसको दे दिए जाएं, राइट। और यहां पे कॉस्ट और चार्जेस का क्लेम करता है वो, और कहता है कि जो भी राइटफुल ओनर है, कोई भी राइटफुल ओनर है इसमें से जो कोर्ट को लगता है उसको ये प्रॉपर्टी दे दी जाए। चलिए आगे आ जाइए। इंटरप्लीडर सूट में देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स, एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन डिफेंडेंट्स, डेट हो, सम ऑफ मनी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, टू और मोर पर्सन्स उस प्रॉपर्टी को मान के चलिए क्लेम कर रहे हैं, और जब पर्सन फ्रॉम होम द सब्जेक्ट मैटर इज क्लेम्ड शुड नॉट क्लेम द राइट, यानी कि हम जब जा रहे हैं कोर्ट उस प्रॉपर्टी को लेके, तो हम ये ना कहें कि ये राइट मेरी है, ये टाइटल मेरा है, या ये इंटरेस्ट है, बस हाँ कॉस्ट और चार्जेस जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं बाय द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द सूट। नो सूट पेंडिंग वेयर सच राइट कुड बी डिसाइडेड प्रॉपर्ली, कोई ऐसा सूट पेंडिंग ना चल रहा हो किसी कोर्ट में कि ये राइट प्रॉपर्ली वहां पे डिसाइड हो पाए। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी है इंटरप्लीडर सूट के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन देखिए, which of the following propositions is incorrect in so far as the power to permit amendment of pleading under order 6 rule 17 of CPC is concerned? A, amendment of pleading must be allowed at any stage of the proceeding before the trial is commenced, कहीं कभी भी करा जा सकता है। अच्छा, B, amendment which cause prejudice to other side may not be allowed by the court. C, the basic or cardinal test for deciding whether an amendment should be allowed is the real controversy test. D, the court is normally prescribed from deciding the correctness or falsity of the case in the amendment when deciding an application for amendment. यहाँ पे जो incorrect proposition है वो है A, amendment of the pleading must be allowed at any stage. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in such a manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real controversy, that is real controversy test. Provided that, here is a very important point, यही question का answer है, provided no application for the amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to a conclusion that in spite of due diligence the party could not, यानी कि ट्रायल कमेंस होने के बाद यहां पे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हेंस ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, मैं बता दूं आपको सीक्वेंस अगर मिस आउट लगे क्वेश्चंस का तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बीच में क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करे गए वो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसी वजह से ये सीक्वेंस जो है वो आपको बिगड़ा हुआ दिखेगा, इसको माइंड कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अ सूट वाज फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ कोर्ट व्हिच हैज नो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन।
to try. That judgment and decree became final. Whether the findings recorded in will operate as res judicata in a subsequent suit between the same parties? A, no. B, yes. C, depends on the facts and circumstances of each case. It will be depending on the discretion of the court. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल. देखिए कैसे, an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction, competent, ठीक है, jurisdiction pecuniary नहीं था, ठीक है, competent to decide the suit. Such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding such court had a limited jurisdiction, was not competent to try such a subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised. Hence, here the correct answer would be B. Next question. A sues for possession of Mutt property as an heir of Mahant. The suit is dismissed on his failure to produce the succession certificate. A files a subsequent suit file कर रहा है as the manager of Mahant. तो पहले एज एन एयर फाइल किया था, यानी कि अब सेम टाइटल तो नहीं रहा, सेम टाइटल का डिस्प्यूट है. क्या अभी भी सेम टाइटल है? A, the second suit will be barred by res judicata. B, the second suit will be not be barred. C, the second suit will be liable to be sued. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो B यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा का मैंडेटरी कंडीशन है कि वहां पे आपका सेम टाइटल होना फ्रेंड्स जरूरी है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. An application for review of judgment would lie only when A, the applicant has accepted the judgment. B, the applicant gives an undertaking to the court to accept the judgment. C, an appeal lies against the judgment and has been preferred. D, an appeal lies against the judgment but has not been preferred. तो क्वेश्चन नंबर 42 ये क्लियरली कहता है कि अपील लाई कर रही थी लेकिन प्रेफर नहीं करी गई. डी ईयर वुड बी द करेक्ट आंसर. अभी हमने रिव्यू की कंडीशंस देखे. नेक्स्ट देखिए. रामलाल एंड कंपनी, अ सोल प्रोप्राइटरी ऑफ रामलाल, फाइल्स अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. पैसे के लिए एक्स फाइल्स अ काउंटर क्लेम in the said suit for recovery of money owned by Shyam and Lal company, a sole proprietary of Shyam Lal, son of Ram Lal. ध्यान दीजिएगा. तो यहां पे A issued will be framed in the suit and the counter claim. B, Shyam Lal will be pleaded as the plaintiff. C, Shyam Lal will be pleaded as the defendant. D, counter claim will be returned. यहां पे counter claim जो है वो रिटर्न हो जाएगा. देखिए, रामलाल एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरी है ऑफ रामलाल. फाइल द सूट अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ मनी. एक्स फाइल्स अ काउंटर क्लेम इन द सेड सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी ओड बाय श्यामलाल एंड कंपनी, अ सोल प्रोप्राइटरी ऑफ श्यामलाल सन ऑफ रामलाल. अब श्यामलाल कौन है? रामलाल के बेटे हैं. तो भाई पार्टी तो डिफरेंट हो गई ना, आपको रामलाल एंड कंपनी से मतलब है, तो यहां पे इसको काउंटर क्लेम को रिटर्न कर दिया जाएगा. एज सिंपल एज दैट. Limitation for substitution of legal representative of a judgment debtor in execution proceedings. अब यहाँ पे execution proceedings में जो limitation है इसको मैं आपको एक बार बताती हूँ. I'll just let you know about this question. 90 days from the date of death of judgment debtor या D. इनमें ऑप्शन इन ऑप्शंस में confusion है. I'll just let you know in a bit. ठीक है, I'll just update. Next question. नॉन सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सेशन में भी हमने कवर किया है. अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, यानी कि नॉन सब्स्टिट्यूशन रहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का, either party to a suit, either party to the suit who dies between the conclusion of hearing and the pronouncement of judgment. तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए, ना तो ये नलिटी होगी, ना तो ये सेटिसाइड होगी, ना तो ऑप्शन ऑफ द पार्टी नलिटी होगी. इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली सूट पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इशूड अंडर द सीपीसी मीन्स मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट अफर्म्ड बाय प्लेंटिफ एंड डिनाइड बाय डिफेंडेंट. तो यहां पे देखिए, डिफेंडेंट plaintiff defendant, affirmed by one party and denied by other. Every proposition of fact or law? nahi. D here would be the correct answer. Material proposition of fact affirmed by one party and denied by the other. Next question. Service of summons of a civil suit on the defendant thereto can be ordered on a publication in newspaper when the plaintiff is willing to bear the cost.
the defendant stays outside the territorial jurisdiction, defendant is avoiding service and cannot be served in a ordinary way. तो ये जो है न्यूज़पेपर में आप इसको लागू कर देंगे कि भाई ये गायब है, ये सदस्य गायब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a party to a suit who has obtained an order to amend his pleadings fails to amend accordingly, अब फेल कर गए, अमेंड नहीं कर पाए, अमेंडमेंट के लिए अलाउ तो कर दिया गया था लेकिन अमेंडमेंट नहीं कर पाए विद इन टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा? If the party is plaintiff, the suit has to be dismissed, the right to amend has to be closed, the right to lead evidence in support of the amendment has to be closed, the right to amend has to be closed, but that party can file another application seeking that amendment. B here would be the correct answer. Amendment का right अब बंद हो जाएगा. चलिए, X files a suit against his sister Y seeking a partition of properties of their parents. Y in her written statement admits the share of X and Y in the properties pleaded by X. The court should. अब एडमिट हो गया है, एडमिशन कर लिया है, फ्रेम इशू करेगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा, डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, पास जजमेंट, डायरेक्ट द पार्टीज. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. अब यहाँ पे अब एडमिशन हो गया, अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है? तो पार्टीज जब अग्री कर गई हैं कि हाँ उनका राइट है इस पे, ये उनका पार्ट है प्रॉपर्टी का. चलिए आगे आ जाइए. लास्ट क्वेश्चन. एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट ऑफ अ सूट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एडवोकेट इज ए अपीलेबल, बी रिवाइजेबल, सी रिव्यूएबल, डी नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव प्रपोजिशंस. करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर डिसमिसल इन डिफॉल्ट का मामला है फॉर नॉन अपीयरेंस या अपीलेबल, रिवाइजेबल, रिव्यूएबल, डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. देखिए यहाँ पे वेयर अ सूट इज होल्डली और पार्टली, यहाँ पे प्रिक्लूड किया जाएगा एक फ्रेश सूट लाने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज, बट ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड एंड इफ ही सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड. और इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए. और फ्रेंड्स आपसे रिक्वायरमेंट है अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करिए और बेनिफिट लीजिए जो आपको मुफ्त में चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं. ऑल द थिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, आई होप इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन हेल्पिंग एनी वन ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. टेक केयर एंड गुड बाय.